Good morning, students. This is for class 4, and I had studied about the in previous classes about the memory and its type, and what is the unit of memory of computer system. As you know, the smallest unit of the memory storage is bit, and 4 bit equal 1 byte. In the previous classes I have all discussed about that all type of memories measurement. As you seen here that a bit is the smallest unit of memory storage, a byte is the unit memory storage, that it's equal 8 bit. After that, hard disk device is another name for a hard drive. It in the sense of हिंदी द बिट जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी स्टोरेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है. हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर का एक स्टोरेज डिवाइस है, इसे हार्ड ड्राइव के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट जो दिया माइक्रो प्रोसेसर ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट. Non-volatile memory is a type of a computer memory that can certain its contents of the power, it is not powered on. यानी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है टोटली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट जो दिया हुआ है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये भी एक तरह का मेमोरी होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव. उसके बाद प्रोसेसर्स के बारे में दिए हुए हैं, रैम के बारे में दिए हुए हैं, रैम के बारे में दिया हुआ है कि कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है, किस तरीके से वो डिवाइस को स्टोर करता है. In the all facts remember related to your chapter 2, and also the related the some questions about the chapter 2 as like shown here is the first question is tick the right choice. Here given the some question, the dash is called the brain of computer, and four options given a multiple choice questions as like RAM, ROM, CPU, and none of these. RAM stands for access memory. Next question, in compact disk you can store. Yet these all types of questions related to of that lesson which I had already studied about in previous video. And after some questions given here, is the read only memory ROM or the operating system and the software stored in as like that all type of question is based on the MCQ. And next question, fill in the blanks is related to of this chapter. Given here some questions, a dash disk is an internal device to store large number of large amount of information. As like after this right T for true and A for false statements. Given a ROM stands for read only memory. Any all these type of questions you have to solve in your copy. Firstly write in your copy, and after this solved all the questions. And after the vacation or lockdown, we checked all the questions to related of this two chapters. The next question is arrange these devices in the increase order of their storage capacity. यानी storage capacity अरेंज करने हैं तो सबसे ज़्यादा कितने storage capacity होता है. जैसे कि हम जानते हैं हार्ड डिस्क नेक्स्ट ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर DVD में होता है, मल्टीमीडिया कार्ड रीडर में होता है, DVD में होता है, उसके बाद CD ROM में होता है. तो इसके लिए इसको कॉपी में अरेंज करना है. दिया हुआ है कि राइट द करेक्ट स्टोरेज डिवाइसेस फॉर each of the following applications. जैसे storing the data sheet of examination, यानी कि storing the data sheet of examination किसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं. taking an 800 MB files from one to home to स्कूल में हम लेके आ सकते हैं. किसके बारे में यानी कैरी करने का काम कौन करता है. स्टोरेज डिवाइस में स्टोरिंग के लिए यानी वन डिवाइस में इसका नाम लिखना है. एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग इस ये जो यहाँ पे सेगमेंट किए हुए इस सेगमेंट के हिसाब से एक जैसे होम यूज़र दैन 200 MB ऑफ वर्क, तो कौन सा यहाँ पे डिवाइस होगा. जैसे कि 200 MB का डिवाइस कौन सा होता है, जैसे किस तरीके से CD पेन ड्राइव कौन सा होता है, उसके हिसाब से उसको हम लोग अरेंज करेंगे. यहाँ पे दिए हुए हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. यानी रैम क्या होता है, रैम का फुल नेम लिखना है, इसका वर्क क्या होता है, किस तरीके का डिवाइस होता है. रोम
फुल नेम लिखना है, किस तरीके का होता है, वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, किस तरीके का होता है, नेचर कैसा होता है इसका, इसे डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द सीडी और डीवीडी विच हैज़ ए मोर कैपेसिटी। डीवीडी और सीडी क्या होता है, किस में ज़्यादा कैपेसिटी होता है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाई डू पीपल यूज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ क्यों करते हैं लोग। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रोम एंड रोम, कंप्यूटर में रोम और रैम का क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में आपको इसको सॉल्व करना है। आफ्टर दिस these all questions are related to your lesson 2 is name memory and the storage devices. So solve these all the type of question. After this I want to given you some assignments to related of these two chapters. Assignment are given here. See here, given the assignment, first question which is related to that two type of lessons which we are I had already studied it. That first questions, write the full form of RAM and ROM. RAM और ROM का पूरा नाम लिखना है. What is the name of the internal storage device ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के नाम लिखने हैं. सेकंड क्वेश्चन दिया है प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि हार्ड डिस्क का इमेज यहाँ पे बना हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है. यानी हार्ड डिस्क का वर्क क्या होता है. नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कार्ड, मल्टीमीडिया डाटा कार्ड और पेन ड्राइव. इसका पिक्चर यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है. पेन ड्राइव का डिस्क्रिप्शन लिखना है, सीडी का डिस्क्रिप्शन लिखना है, डीवीडी का डिस्क्रिप्शन लिखना है. उसके बाद कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे. जिसमें यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है, यानी कि इसमें आपको लिखना है कि माइक्रोफोन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनपुट एंड टिक इन द एप्लीकेशन कॉलम. जैसे माइक्रोफोन में किस तरीके का वर्क करता है. ये टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, ग्राफिक्स होता है, वीडियो होता है, पॉइंटिंग होता है, किस तरीके का डिवाइस होता है ये, इसको टिक करना है. कीबोर्ड, ऐसे ही कीबोर्ड के बारे में, वेब कैम के बारे में, स्कैनर, बार कोड रीडर और माउस के बारे में, इन सब में पहले टिक करना है. जैसे कीबोर्ड हो जाता है टेक्स्ट डिवाइस होता है. वेब कैम जो होता है वो वीडियो डिवाइस होता है. स्कैनर जो होता है वो ग्राफिक डिवाइस होता है. बार कोड रीडर जो होता है वो भी ग्राफिक डिवाइस होता है. माउस जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है. इस तरीके से आपको इसको पहले कॉलम को कॉपी में अरेंज करना है. इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेना. ड्रॉ करने के बाद फिर इसको सॉल्व करना है. आफ्टर द वर्ड सर्च से क्वेश्चन रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है. ये नीचे में उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं. इन ऑप्शंस के माध्यम से इसमें हमें वर्ड सर्च करना है. तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है जो कि इसे आप सॉल्व करेंगे. ये टोटल जो क्वेश्चन है रिलेटेड चैप्टर बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ 1 and 2 असाइनमेंट फर्स्ट. दिस ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू 1 and 2 lessons. So after this, thanks a lot.